کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا روز بھی مشکلات کا شکار رہا۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں، تاہم افغان طالبان کا وفد پاکستانی مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور، منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ افغان طالبان کے وفد کو کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے، جبکہ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہ بات سمجھائی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں توانائی، تجارت، سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا توانائی، تجارت، نئے منصوبوں پر بھی غور۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر خزانہ بھی موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر پیغام سامنے آ گیا۔ کہا، آج ریاض میں اپنے بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملنا بہت خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون، شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کی ذاتی دلچسپی اور مستقل حمایت پر دل سے شکر گزار ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا تحریک عدم اعتماد لانے پر اتفاق۔ نون لیگ کا تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت کا حصہ نہیں ہوگی۔ پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، موجودہ آزاد کشمیر حکومت پر اعتماد نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ کی گفتگو۔ احسن اقبال نے کہا کہ آزاد کشمیر کا موجودہ سیٹ اپ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں اکثریت حاصل ہوئی تو حکومت بنائے گی۔ قمر زمان قاہرہ بولے کہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے، آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس کا مشن۔ پیپلز پارٹی نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ لیگی وفد کی صدر آصف علی زرداری سے بیٹھک۔ تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کی یقین دہانی۔ صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کی 3 رکنی ٹیم نے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ وفد میں رانا ثناءاللہ اور امیر مقام بھی شامل تھے۔ بلاول بھٹو زرداری، چودھری یاسین اور فیصل ممتاز راٹھور بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں طے پایا، مسلم لیگ نون موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دے گی، لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی اور وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا جمہوری کردار ادا کرے گی اور عوام کی نمائندگی کرے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت بحران کا سبب بنی ہے، اسے عدم اعتماد کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ راجہ پرویز اشرف بولے، جو معاہدہ ایکشن کمیٹی سے کر کے آئے ہیں اسے پورا کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر مشاورت کی اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، جس کا ہم دونوں جماعتیں حصہ تھے، وہ آزاد کشمیر کے اندر مسائل حل کرنے تو کیا، وہاں پہ ایک کرائسس کھڑا کرنے کی باعث بن گئی، اور اس کی موجودگی میں ایسے کرائسس کھڑے ہوئے جس کو حل کرنے کے لیے 2 دفعہ فیڈریشن کو جا کے اس معاملوں کو ریزالو کرنا پڑا۔ اب اتفاق رائے اس بات پہ ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے گا، اور عدم اعتماد میں مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نمبرز پورے کر چکی ہے۔ نیا وزیر اعظم کون ہوگا، اس کا اعلان بلاول بھٹو جلد کریں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान असम्बली को मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने की हिदायत दे दी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुश्तरका तौर पर तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत अहसन इकबाल और नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर करेंगे। इजलास में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट देने या ना देने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और चौधरी लुत्फ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। नून लीग की हिमायत के बाद पीपल्स पार्टी को 52 के बाद में 36 अरकान की हिमायत हासिल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रहाइश पर मुलाकात हुई। वफूद के हमरा होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। पार्लियामेंट में वर्किंग रिलेशन का मामला भी ज़ेर गौर आया। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना के डेरे पर आमद, कौमी और सियासी अमूर पर बातचीत, राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने अपने घर आमद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खैर मकदम किया। नैयर बुखारी, हिमायूं खान और जमील सोमरो भी बिलावल के हमरा थे। मौलाना असद महमूद भी मुलाकात में मौजूद थे। JUI जराये का कहना है कि ये मुलाकात खैर सगाली थी, एजेंडा मीटिंग नहीं थी, किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को अपने घर आने की दावत दी। मौलाना ने बिलावल की दावत कबूल करते हुए कहा, आपके वालिद मुलाकात करने आए, आप भी कई बार आए, हम मुलाकात करने आएंगे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में सरबराह JUI का कहना था, पाक अफगान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए संजीदा राब्ता किया गया तो मुस्बत जवाब देंगे। मुल्की मफाद हमारी तरजीह है, हम मुल्की मफाद के पेश नज़र ही काम करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का उर्दन के सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम से मुलाकात की। शाह अब्दुल्ला दोइम ने पाकिस्तान से दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उर्दत के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना सलाहियतों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल ने उर्दनी मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की, जबकि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को जनरल हेडक्वार्टर्स अमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फरीकैन ने पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफवाज के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हनीफी ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का एक और ऐसा इक़दाम, मुल्क की तारीख में पहली बार मसाजिद के इमाम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इमाम मस्जिद काबिल एहतराम है, उन्हें चंदा इकट्ठा करके अदायगी करना मुनासिब नहीं है। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ई-बिज़नेस गेम चेंजर साबित हो सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अमन अमान और ई-बिज़नेस पर इजलास। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पंजाब की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फर्द चंदा इकट्ठा करके अदायगी करना गैर मुनासिब है। हुकूमत पंजाब इमाम मस्जिद की मुआशी माउनत करेगी। मसाजिद की तामीर व मरम्मत के प्रोजेक्ट्स भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर दिए गए। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब में अमन व अमान में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंतज़ामिया अवाम की शिकायत का फौरी अज़ाला करे और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। लोगों का अपने मुल्क पे, अपने सिस्टम पे, अपनी गवर्नमेंट पे उनका जो फेथ है वो न सिर्फ रिस्टोर हो, बल्कि उनको लगे कि रियासत जो है वो माँ जैसी है और हमारे सारे जो लोग हैं उनको ये लगे कि हम उनका काम करने के लिए, उनका काम रोकने के लिए नहीं। मैं ये समझती हूँ कि तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, तमाम कमिश्नर्स को, तमाम DCs को इसको फैसिलिटेट करना चाहिए।
वज़ीर आला ने ई बिजनेस के लिए 2 हफ्ते की टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत की और कहा सुर्ख फीते का खात्मा मेरा आज़म, ई बिजनेस के जरिए रातों रात तब्दीली मुमकिन है। आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ई बिजनेस गेम चेंजर साबित हो सकता है। इजलास में पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इज्तिमा के लिए रावंड के राब्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध पुलिस ने डिजिटाइजेशन के सफ़र में एक और एडिशन की है। ये ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम को डिजिटाइज ट्रैफिक चलान सिस्टम बनाया है। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम पर आज से अमल किया जाएगा। ई चलान टिकटिंग सिस्टम ज़रूरी है। कराची और सिंध भर में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सिंध पुलिस को कि उन्होंने डिजिटाइजेशन के सफ़र में आज एक और एडिशन की है। ये ट्रैक्स जो इन्होंने डिजिटाइज्ड ट्रैफिक चालान सिस्टम एक बनाया है और जिसको इंशाल्लाह ताला आज से इम्प्लीमेंट करेंगे। ई चालान का सिस्टम है जो हमारे ट्रैक्स का प्रोग्राम है, उसके ना सिर्फ शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हेवी व्हीकल्स पे ट्रैकर्स लगे हुए हैं। उसके अंदर ट्रैकर्स के अंदर ये है कि जी आप 30 किलोमीटर से अगर ऊपर आपकी रफ्तार होगी तो आपको चालान इशू होगा। अगर एक वायलेशन होती है तो उसको 20,000 रुपये उस पर चालान है। वो डेमो ही देख रहे थे तो एक और इंटरसेक्शन देखिए कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं ये बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती तो साइकिल को भी नहीं रोकती। इस्तांबुल में ज़लज़ला शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ साहली शहर इज़मिर से 170 किलोमीटर शिमाल मशरिक में वाक़ था। अहम खबर यह है कि इस्तांबुल में ज़लज़ला शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ये बताया गया है कि ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी और ज़लज़ले का मरकज़ साहली शहर इज़मिर से 170 किलोमीटर शिमाल मशरिक में वाक़ था। खेलों की दुनिया से खबर आपको दें कि भारतीय टीम को हर मामले में खुसूसी रियायत दी जाती है। आईसीसी का भारत के मामले में रवैया बहुत नरम होता है। साबिक आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भांडा फोड़ दिया। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि एक मैच में ओवर रेट स्लो होने पर भारतीय टीम को जुर्माना होता था, मगर मुझे दौरान मैच फ़ोन करके नरम रवैया इख्तियार करने का कहा गया। भारतीय टीम को हर मामले में खुसूसी रियायत दी जाती है। क्रिस ब्रॉड आईसीसी का भारत के मामले में रवैया बहुत नरम होता है। क्रिस ब्रॉड ने कहा है कि साबिक आईसीसी मैच रेफरी उनकी जानिब से कहा गया है कि एक मैच में ओवर रेट स्लो होने पर भारतीय टीम को जुर्माना होना चाहिए था। मुझे दौरान मैच फ़ोन करके नरम रवैया इख्तियार करने का कहा गया।